خواتین و حضرات، ترقی کے لیے بحث اور اختلاف رائے لازمی ہیں۔ اختلاف رائے کے بغیر معاشرہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی نقطہ نظر کی بنیاد پر ہم ایک نیا پروگرام ریالٹی بائٹس کے نام سے لانچ کر رہے ہیں۔ شاید آپ کو یہ نام سننے میں عجیب معلوم ہو۔ اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، گویا ریالٹی presents itself. It reaches out to us. ساتھ ہی ساتھ یہ پروگرام یہ کوشش کرے گا کہ یہ حقیقت تک رسائی حاصل کر سکے۔ آج کا پہلا ریالٹی بائٹس عورت مارچ کے اوپر منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس پر بحث کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 اسکالرز موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، 8 مارچ دنیا بھر میں خواتین کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور پاکستان میں بھی اس دن کو ریکگنائز کیا گیا ہے سرکاری سطح پر، اور اس کو آبزرو کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ 2018 سے اسی دن پاکستان کے بڑے شہروں خصوصاً لاہور، کراچی، اسلام آباد اور پشاور میں خواتین کی جانب سے مارچز، پروٹیسٹ اور ریلیز کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ اب ان دونوں اکائیوں یا دونوں موقعوں کا یکجا ہو جانا بعض لوگوں کے لیے تشویش کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا ہماری آج کی نشست کا یہی سوال ہے، گویا why is the عورت مارچ controversial in پاکستان؟ یعنی عورت مارچ پاکستان میں آخر متنازع کیوں ہے؟ اس موضوع پر بحث کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 اسکالرز موجود ہیں۔ اولین ہمارے پاس ڈاکٹر عافیہ شہر بانو ضیاء موجود ہیں، جو ایک فیمنسٹ ریسرچر اور ایکٹیوسٹ ہیں۔ آپ کئی کتابوں، تحقیقی مقالوں اور مضامین کی مصنف ہیں۔ یونیورسٹی آف ٹورنٹو، ویسلین یونیورسٹی کینیڈا اور حبیب یونیورسٹی کراچی میں تدریس کے فرائض سر انجام دیتی رہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر عاطف خالد بٹ ہیں، چاہیں گے ڈاکٹر عافیہ ضیاء یہ بتائیے، عورت مارچ آخر ہے کیا and why do we need it in پاکستان؟ تھینک یو سمیر۔ ضرورت کی بات نہیں ہے، جب بے انصافی کے خلاف تحریکیں بے ساختہ خود ہی اٹھ جاتی ہیں، اور اسی طرح سے 2018 میں جیسے آپ نے ذکر کیا، ایک نوجوان نسل کا یہ خیال تھا کہ جو پچھلی خواتین کی تحریکیں رہی ہیں ان میں صنفی عدم مساوت پر توجہ نہیں دی گئی ہے، اور بہت سی چیزوں پہ قانون پہ، معیشت پہ، غربت پہ، ان چیزوں پہ اور جمہوریت پہ اور پولیٹیکل امپاورمنٹ پہ تو زور تھا، لیکن اس خاص موضوع پر اور پیش گوئی اور یہ مسائل پہ توجہ نہیں دی گئی تھی، اور اس کا عورتوں کے سٹیٹس سے اہم تعین ہے، یہ نہیں کہ الگ ہے۔ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان میں جو جنسی اسکرپٹ اور صنفی کردار مرد ہی لکھتے آئے ہیں، بلکہ پاکستان میں نہیں، اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں مسلمان عورتوں کی برِ صغیر میں بہشتی زیور ٹائپ ٹیکسٹ جو ہیں مردوں کی لکھی ہوئی آتی گئی ہیں، اور ان کا خاص کردار محدود رہا ہے اس میں۔ تو عورت مارچ کا دعویٰ یہ رہا پھر کہ خصوصاً عورت کا جسم جو ہے، اس کی مشقت، اس سے بچہ پیدا کرنا یا نہیں کرنا، شادی کرنا یا اس سے انکار کرنا، جو جنسی تعلق کے فیصلے ہوتے ہیں، فیصلہ کاری جو ہوتی ہے، جو سب عورتوں کو یہ اختیار میں ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں اپنا موقف خود پیش کرنا چاہتی تھی۔ لہٰذا یہ ایک تحریک چلی تھی، اور تھوڑی سی کریکشن اگر میں کر لوں سمیر، کہ یہ صرف بڑے شہروں میں نہیں، اس کی خاصیت یہ رہی تھی، اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ، کہ یہ چھوٹے شہروں میں بھی اور خصوصاً بلوچستان میں بھی کچھ شہروں میں اٹھا۔ تو یہ ہمیں ماننے کی ضرورت ہے۔ ابھی حالیہ ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشنز میں بھی، انتخابات میں بھی اس سال کے ایک جنریشنل شفٹ آئی ہے، اور ان کا موقف کچھ اور ہے۔ اب ہم یا تو اس کو نظر انداز کر دیں اور کہیں، جیسے آپ مطلب آئی ایم شیور آگے بھی بات ہوگی کہ یہ مغربی امپورٹ ہے، یہ مطلب یہ ساری باتیں جو ہیں، نہیں ہے ایسا۔ میرے خیال میں مجھے بہت سی کرٹیکل پوائنٹس ہیں اس تحریک کے بارے میں، اور میں نے لکھا بھی ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ایک نئی نسل کی نئی مانگ ہے، اینڈ اٹ ہیز فلڈ آؤٹ اے وائڈ جو کہ پہلے کی تحریکوں میں رہا۔ یہ بھی ہمیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ توجہ دلانے کی اس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ جسمانی خلاف ورزی تو ہوتی ہی ہے، اس کے بارے میں پہلے سے بھی تحریکیں چل رہی، لیکن اس کے علاوہ جسمانی سیاست جس کو کہتی ہیں فیمنسٹ، کہ فیمنسٹ سیکشول پولیٹکس جو ہوتا ہے، اس میں
औरत का जिस्म, औरत की का वजूद किस तरह से पेश किया जाता है और उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब वो अपने जिस्म पर मुकम्मल मलकियत चाहती हैं, इनकी माँगें ये हैं औरत माज की और ये कि रज़ामंदी का इख्तियार रखना चाहती हैं, ठीक है? वो अपने तहफ़्फ़ुज़ या आज़ादी इज़हार का फ़ैसला खुद करना चाहती हैं। तो अब ज़ाहिर है उसके खिलाफ़ जो मतलब कि जिस तरह से सिर्फ़ ये नहीं कि स अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनना चाहें, लेकिन किस पेशे में जाना चाह रही हैं, किस तरह से मोबिलिटी होनी चाहिए, मोटरसाइकिल चलाना चाहती जो भी जिस्मानी मशक्कत या तफ़रीह या लेज़र या जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं माशरे में, घर में अ, उसमें उनको अपनी ऑटोनॉमी चाहिए और अपना फ़ैसला-कारी खुद करना चाह रही। और पिछले दिनों, पिछले हफ़्ते बल्कि आपने देखा है कि लाहौर के बाज़ार में जो वाक़या हुआ है, उससे तो मेरे ख़्याल में ये भी साबित हो गया है कि ये भी बहुत अहम बात है कि औरत कपड़े कैसे पहनती है। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी पहन लें, उसमें मर्दों की मदाख़लत, उनकी अपनी राय और उनकी अपनी कंट्रोल और मॉरल पुलिसिंग जो है, वो मतलब इंतहा तक पहुँच चुकी है पाकिस्तान में। तो इस सारे पैमाने में ये देखने की ज़रूरत है कि वाक़ई में औरत माज की ज़रूरत है कि नहीं? तो मेरी नज़र में तो बिल्कुल ज़रूरत है, गिवन दे दैट कि कोई लगता नहीं है कि कोई डेंट भी आया है इस रवैये में और इस बात में। अब हम इस पे आगे बात कर सकते हैं कि इसकी हदूद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, लेकिन जब मर्दों के रवैयों के कमज़ोर जेंडर्स और सिनफ़ी शिनाख्त रखने वालों के खिलाफ इतनी ज़ोरदार है, तो फिर मैं क्या उसके ऊपर नहीं हमें तवज्जो देनी चाहिए कि उसकी हदूद क्या होना चाहिए बनिस्बत के जी औरतों की माँगों की ज़रूरत या जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की जो माँग है, उसके ऊपर हम पाबंदियाँ डालते जाएँ। Right, fair enough. Dr. Atif Khalid Butt, I have the same opening question for you. औरत मार्च की ज़रूरत आप इन दलाइल से कन्विंस हुए? डॉक्टर शेरबानो ज़िया कहती हैं कि इट इज़ फिलिंग अ वॉइड इन सोसाइटी और ये कि ये एक जनरेशन की डिमांड है और वक़्त की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी इस मौजू पर बात करने के लिए। देखिए इसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो वाक़ईतन हकीकी वजूद रखती हैं, उन पे बात होनी चाहिए और जो मज़ालिम या अदम मसावात का सिलसिला है, उसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों के ज़हन में जो इस तरह की बातें पैदा होती हैं कि ये एक ख़ास किस्म का एजेंडा है, जो कुछ मग़रबी इदारों की तरफ से दिया गया है, तो अगर आप पूरे मंज़रनामे को देखें तो शायद उनका ये ख़्याल गलत भी नहीं है। और शायद गलत इसलिए भी नहीं है कि पाकिस्तान में मुआशरे की जो अक़दार हैं या मुआशरा जिन अक़दार पे खड़ा है, उन अक़दार को जब आप हिलाने की कोशिश करते हैं या आप ये कहते हैं कि आप जिन नारों को लेके उठ रहे हैं, उनका मकसद मुआशरे में मौजूद अक़दार के निज़ाम को नुकसान पहुँचाना है, तो फिर लोगों के ज़हन में वजह तौर पर कुछ सवाल उठते हैं और उन सवालात के साथ उनके ज़हनों में भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास पैदा होता है, जिसके नतीजे में फिर चीज़ें एक ऐसी सतह पे चली जाती हैं जहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए। देखिए अभी डॉक्टर साहिबा ने बात की और ये बात होती भी है कि जी मुकम्मल इख्तियार या मुकम्मल मिल्कियत अपने जिस्म है। अच्छा ये जो एक तसव्वुर है मुआशरे में जो इसकी मुख्तलिफ जहतें हैं, हमें उसे देखने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि पाकिस्तान भारत और एक मुस्लिम मुआशरा इस्लाम कितना यहाँ नाफ़िज़ है या कितना नहीं है, वो एक अलग बहस है। लेकिन है एक मुस्लिम मुआशरा। यहाँ पे लोगों के ज़हन में जब आप ये बात करते हैं कि मुकम्मल इख्तियार, तो लोगों के ज़हन में पहली बात ये आती है कि जी मुकम्मल इख्तियार तो अल्लाह की तरफ से होता है, बंदे की तरफ से होता ही नहीं। और अगली बात जो ये है कि औरत जो है वो बच्चा पैदा करने के हवाले से या जिनसी ताल्लुक के हवाले से या शादी के हवाले से चाहती है कि उसके इख्तियार और पसंद और मर्ज़ी को शामिल किया जाए इस पूरी बात में। तो इसमें शादी तक वाली बात बिल्कुल ठीक है कि शादी जो है वो हर ख़ातून और हर मर्द की आज़ाद मर्ज़ी से होनी चाहिए। बच्चा पैदा करने वाला जो मामला है इसमें ज़ाहिर है उन दोनों की राय शामिल होगी। लेकिन ये कहना कि किसी एक वक़्त पे कोई ख़ातून जो है वो अपने शौहर से ये कह सकती है कि वो उससे ताल्लुक़ कायम नहीं करना चाहती और उसके पीछे कोई वजह नहीं है। यानी एक तो बुनियाद ये है कि किसी वक़्त में वो बीमार है, वो ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है, वो किसी अख़लाक़ी दबाव का शिकार है, किसी भी वजह कुछ भी वजह हो सकती है। उस वजह से वो महसूस करती है कि वो इस वक़्त इस काबिल नहीं है
चंद दिन के लिए, चंद घंटे के लिए, वो इस काबिल नहीं है कि वो उसके साथ ताल्लुक कायम कर सके, तो ये बात समझ आती है। और इसमें ज़ाहिर है उसके शौहर को उसके साथ ताउन करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि गैर महदूद वक़्त के लिए एक खातून ये कहने का इख्तियार रखती है कि जी मैं आपके साथ ताल्लुक कायम नहीं करना चाहती, तो ये मेरे ख़्याल में खराबी की बुनियाद बनेगा और इससे उन दोनों के ताल्लुक में बिगाड़ आएगा। ये सिर्फ़ औरत के लिए नहीं है, मर्द के लिए भी है। मर्द भी उसे ये नहीं कह सकता कि मैं गैर महदूद वक़्त के लिए तुम्हारे साथ ताल्लुक कायम नहीं कर सकता। तो दोनों को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि देखें दोनों के दरमियान एक समाजी मुआहिदा है। वो समाजी मुआहिदा कुछ शराइत की बुनियाद पे कायम है। अगर वो उन शराइत को ख़त्म कर देते हैं और एक-दूसरे के साथ ताउन नहीं करते, तो फिर वो मुआहिदा कायम नहीं रह सकेगा। अगर तो वो समझते हैं, तो वो एक-दूसरे के साथ नहीं चल सकते। वो जज़्बाती तौर पे, नफ़सियाती तौर पे, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे किसी भी वजह से एक-दूसरे से मुतमईन नहीं, तो वो उस मुआहिदे से निकल सकते हैं। लेकिन अगर वो उस मुआहिदे के अंदर रहना चाहते हैं, तो कुछ हदूदों के यूद है जिन्हें सामने रखना पड़ेगा और वो मर्दों को भी रखना पड़ेगा, वो औरतों को भी रखना पड़ेगा। अच्छा अगर आप डॉक्टर ये साहब, कहते हैं कि जी अगर मैं आपको इंटरप्ट कर जो सकूँ, अगर मैं आपको आपकी इजाज़त से इंटरप्ट कर सकूँ, जी, अ, आपने जो ये कहा कि इस जी। रिश्ते के हुदूद-व-क़ुयूद में कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या आप मर्दों को भी इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या यही उनके ऊपर लाज़िम करेंगे कि वो भी हर वक़्त अवेलेबल होने चाहिए फॉर पार्टनरशिप, या आप सिर्फ़ ये ख़वातीन के लिए असूल वाज़े कर रहे हैं? नहीं, ये दोनों के लिए है। देखें, समाजी मुआहिदा जो उनके दरमियान कायम हुआ है, वो दोनों की मुसावात पे कायम हुआ है। हुँ, ये हो सकता है कि घर की ज़िम्मेदारी में ज़ाहिर है किसी की बात को दूसरे की निस्बत ज़रा वज़न ज़्यादा मिल जाए, लेकिन बहरतौर वो जो समाजी मुआहिदा उनके दरमियान कायम हुआ है, वो तो मुसावात की बुनियाद पे कायम हुआ है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मर्द जो है उसे खुली छुट्टी है और खातून जो है उस पे पाबंदियाँ हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता। आप ये कर ही नहीं सकते, इससे मुआशरे में बिगाड़ पैदा होगा। यानी आप एक फरीक को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देंगे और दूसरे फरीक को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देंगे। तो लेकिन एक की कमज़ोरी और दूसरे की मजबूती उस ताल्लुक को चलने नहीं देगी। मुझे लगता है डॉक्टर साहब को औरत मार्च बिल्कुल उसका हिस्सा बन जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल औरत मार्च की माँग एग्ज़ैक्टली यही है कि जो कमज़ोर तबका है, अब या तो हम बुनियादी तौर पे ये तो फ़ैसला कर सकते हैं और ये तो एग्री कर सकते हैं कि फ़िलवक़्त जो सिनफ़ी गैर बराबरी है, उसमें मर्द ही हावी हैं पाकिस्तान में, मतलब बेशतर माशरे में, मगर ख़ुसूसन पाकिस्तान में। और वो एक ख़ास तबक़ाती हवाले से भी कि हर तबके में मर्द जो है वो हावी हैं। तो कमज़ोर सिन्फ के मतलब की जो मेंबरशिप है, ये तो हमें अच्छी तरह पता है। अब वही कमज़ोर लोग यही माँग रहे हैं जो डॉक्टर साहब जिसका ज़िक्र कर रहे हैं कि बराबरी होनी चाहिए। घर के अंदर भी नुकसान में, मगर दूसरी एक अहम बात जो इन्होंने ज़िक्र किया कि जब हम बात करते हैं ना, ये हम एब्स्ट्रैक्शन में चले जाते हैं थोड़ा। माशरे का बिगाड़ होगा, सकाफ़त में वो खलल होगी वग़ैरह, लोग कहते हैं। मेरे ख़्याल में इस पे अब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो माशरा मर्दों का बनाया हुआ है, वो सकाफ़त का बहाना जो है वो मर्द ही कर रहे होते हैं जब उनको अपना हकूक नहीं देना चाहते। तो ये तो नहीं है कि ज बड़े मासूम हैं, एक तो अब जिस तरह से ये तसव्वुर किया जा रहा है कि बड़ी मासूमियत है, ये तो अगर औरत ज़्यादा माँग ले, अपने हक से ज़्यादा माँग रही है। मतलब ये तो तय करे ना कि वो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं है, तो वो अपने मुकम्मल हकूक क्या, उसको तो आधे हकूक भी नहीं मिल रहे हैं, वन फ किसी चीज़ पे भी। आपके अपने सरकारी सर्वेज़ देख लें, इक्वल पे नहीं मिलता है, इक्वल मल्कियत नहीं है, इक्वल हकूक नहीं है। कानूनी तौर पे शादी के अंदर, तलाक के अंदर, चाइल्ड कस्टडी में, मेंटेनेंस में औरतों को बराबर का हकदार नहीं है इस मुल्क में। तो और इस माशरे में और इस कानून में, इस आइन में ज़रूर होंगी, मगर फ़र्ज़ी तौर पे। तो ये तो पहले माने, फिर आप देखें कि जी तरीक़ें जो चल रही हैं, वो बराबरी की तरफ जब जा रहे हैं और आप उधर से ही डिफेंसिव हो रहे हैं कि ये हो जाएगा, अगर मिल जाएगा तो ये तबाह हो जाएगा। भई तबाहकुन तो ऑलरेडी है जो हम हालात देख रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में थोड़ी-सी करेक्टिव की ज़रूरत है और आई एम ग्लैड कि ये खुल के थोड़ी-सी मैच्योर तरीके से बात हो रही है कि हम सेक्सुअल ताल्लुकात की या जिनसी ताल्लुकात की बात कर रहे हैं और करनी चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो ये इस पे तो मानने की ज़रूरत है कि औरत मार्च ने कन्वर्सेशन तो टेबल पे लेके आए, पहले तो बात ही नहीं होती थी। ख़वातीन की तहरीकें भी नहीं बात करती थी, ये टैबू सब्जेक्ट हुँ, होता था। जब हुँ, हुँ। खामोशी
होती है एक मौज़ू के ऊपर तो उसके तहत बहुत सी एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज़ और गैर मतलब बिल्कुल एक हार्मफुल रिस्क रिस्क वाले बिहेवियर जो है वो फिर इम्प्यूनिटी के साथ फैल जाता है। उसमें कोई पाबंदी नहीं होती है और वो छुप-ढक के मिली-भगत से उसको चलता चला जाता है। लिहाज़ा मेरे ख़्याल में इस पे ये सेक्सुअल रिलेशंस इन अ मैरिज की भी अगर हम बात करें, जो कि औरत माच करता है इसके ऊपर। ये तो नहीं हुँ। हो सकता डॉक्टर साहब कि एक औरत सारा वक़्त एक डॉक्टर की सर्टिफ़िकेट लेके आए और कहे कि जी क्योंकि मुझे एक डॉक्टर ने कह दिया है, वो भी मर्द ही होगा अमूमन, तो उसने कहा है तो मुझे इजाज़त मिल गई है कि अब मैं ताल्लुकात नहीं करना चाहती हूँ और इतने दिनों के लिए नहीं कर मतलब ये किस किस्म का ताल्लुकात है? कि जी आप सिर्फ़ एक ढाँचा है इतने दिनों बच्चा के पैदा करें, मर्द की जब ज़रूरत हो उसको पूरी करना ये पूरा उसी पैमाने के अंदर आ जाता है ना, तो ये इसको रीफ्रेम करने की ज़रूरत है कि सेक्सुअल रिलेशंस या मैरिज जो है एक इक्वल रिलेशनशिप है। अगर ये हम बात करेंगे एंड अभी इक्वालिटी नहीं है, तो ज़रा-सा कभी ज़्यादा पुश करना पड़ता है ताकि थोड़ा-सा समझ तो आए लोगों को, वी टूक इट फॉर ग्रांटेड। तो हुँ, मेरे हुँ। ख़्याल में कि ये इसको ये एक तो ये समझना चाहिए कि ये बुनियादी मसला है। इसको ये नहीं समझना चाहिए कि मग़रिबी मसला है, ये बहुत मतलब मुनासिब नहीं है एंड इट इज़ हार्मफुल थिंग टू से दिस, अच्छा, डिलेजिटिमाइज़ इस पर हम आते हैं अभी एंड बिफोर आई गिव अ चांस टू डॉक्टर आतिफ भट्ट टू रिस्पॉन्ड, मैं एक सवाल आप दोनों के सामने रखना चाहूँगा विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू बी अ बिट डायरेक्ट विद यू। प्रोफेसर आफिया ज़िया, ये अक्सर कहा जाता है कि औरत मार्च से मुंसलिक ख़वातीन या वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट्स पाकिस्तान में मग़रबी तालीम याफ़्ता होती हैं। आप यकीनन मग़रबी तालीम याफ़्ता हैं। ऐसे लोग पाकिस्तान में अपना सारा वक़्त नहीं गुज़ारते, दे लिव अब्रॉड एंड दे कम टू पाकिस्तान एज़ टूरिस्ट्स, वो कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में क़याम करते हैं। तो लिहाज़ा ये लोग एक मग़रबी खुफ़िया एजेंडे के तहत पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के इस्लामी या मुसलमान तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाना पहुँचाना चाहते हैं। सो इफ आई मे बी डायरेक्ट विद यू, क्या आपको किसी मग़रबी एनजीओ या हुकूमत की तरफ से कोई फंडिंग रिसीव हुई? क्या आपको कभी कोई एजेंडा दिया गया? व्हाट आर यू वर्किंग ऑन? पहली बात तो ये है कि समीर मैं तो सारी उम्र पाकिस्तान में ही रही हूँ। सिर्फ़ ये 2 साल 1 साल मैंने टोरंटो में अपना वो जो पीएचडी किया था और 1 साल मैंने बाहर वेस्लेयन यूनिवर्सिटी में जिसका आपने ज़िक्र किया, पढ़ाया है। सारी उम्र पाकिस्तान में रही हूँ, उधर ही शऊर आया है जमहूरियत का, ज़िया-उल हक के दौर में हम स्कूल में यूनिवर्सिटी पढ़ी पाकिस्तान में हूँ। अगेन 1 साल के लिए बाहर गई थी, तो मेरे ख़्याल में ये मुनासिब ही नहीं है कि कहना कि जी मैं आई होल्ड अ डिफरेंट पासपोर्ट, पैदाइश मेरी बाहर हुई थी। 1 साल की उम्र में वापस पाकिस्तान आ गई थी। तो ये मेरे ख़्याल में एक तो करेक्शन है ये। लेकिन अगर आप तवज्जो भी दें, ये जो इनसिक्योरिटी है, आई मीन उस तरह से देखा जाए तो बेनज़ीर भुट्टो के बारे में भी, इमरान ख़ान के बारे में भी, वो भी मग़रबी तालीम याफ़्ता हैं। वो भी बैरूनी मुल्क रहे हैं, वो अब्रॉड। फॉर दैट मैटर मोहम्मद अली जिन्ना को भी इस किस्म के इल्ज़ामात ठहराए गए थे कि वो मग़रिबी मग़रिब से बहुत मुतासिर है। इल्ज़ाम तराशी जो है ना, ये बहुत आसान तरीका होता है टू नॉट डिस्कस द इश्यू। बावजूद इसके इन लीडर्स जो बड़े पैमाने पे इनकी फॉलोइंग्स भी हैं और लाखों के वोट्स इनको मिलते हैं। तो ये जो इतराज़ात हैं, ये बहाने बन जाते हैं, इसका एजेंडा से कोई ताल्लुक नहीं है। बुनियादी मसले हैं, हमने तो और जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि मैं औरत मार्च की फाउंडर नहीं हूँ, मैं तो उससे पहले की तहरीकों का हिस्सा रह चुकी हूँ। वेव्स आती हैं तहरीकों में भी, वुमेन्स मूवमेंट में भी डिफरेंट वेव्स आई हैं, जैसे आप जानते हैं। तो ये मैं बग लेकिन मैं समझती हूँ बिल्कुल बजा तनकीद थी एक नई नस्ल की कि पहले की तहरीकों ने इस बात पे क्यों नहीं तवज्जो दिलाई। हरासे के ऊपर, तशद्दुद के ऊपर, ज़िना की जो कानून थे जिसके तहत औरतों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी, इन सारी हुँ, चीज़ों पे कानूनी हकूक पे तो हमने काम किया। उस वक़्त भी हुँ, कौन-सा एजेंडा होता है जो आपको बताता है अगर आप गुर्बत के खिलाफ काम करें पाकिस्तान में, तो क्या ये वेस्टर्न एजेंडा है? अगर आप मईशत को हुँ, बेहतर करें, ये भी वेस्टर्न एजेंडा है और आप मुझे बताएँ कि जमहूरियत जो सबसे बड़ी वेस्टर्न इम्पोर्ट है, उसपे तो किसी को तकलीफ नहीं होती है। तो ये मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल क्लियर एजेंडा तो उन लोगों का है जो इतराज़ करते हैं औरतों की या इंसानी हकूक़ के उस पे। बहुत से एनजीओज़ हैं जो पॉवर्टी पे काम करते हैं, तो क्या गुर्बत पे काम करना बंद कर दें हम? उससे पैसे आईएमएफ से का कर्ज़े ले रहे हैं और इस गुर्बत को ख़त्म करने के लिए। तो ये वेस्टर्न हुँ, इम्पोर्ट नहीं है और हुँ। इतराज़ अगर उस पे है तो बराबर का रखें ना, या उसको अगर आप समझते हैं कि जायज़ है, तो ये हर किस्म की तहरीकें जो पाकिस्तान के अंदर हैं और अब तो 40 साल हो गए हमें काम करते-करते, कब तक आप हमें यही कहते रहेंगे हमारा एजेंडा है, लेकिन जो मदरसे बनाने वाले हैं या जो मज़हबी जुनून पैदा करते हैं पाकिस्तान में, उनका एजेंडा नहीं है कोई।
सो एजेंडा के हुँ। बगैर कौन है, मैं ये समझना चाह रही हूँ। सिर्फ़ कोई मज़लूम मुसलमान मर्द सुन्नी हनफ़ी जो पाकिस्तान में है, या कौन है मज़लूम? हुँ, हुँ। डॉक्टर आतिफ़ ख़ालिद भट्ट, इससे पहले कि आप अपनी राय का इज़हार करें, मैं यही सवाल आपके आपके सामने रखूँगा और उसको फ्रेम ज़रा मुख़्तलिफ़ अंदाज़ में करूँगा, क्योंकि आपने भी अपनी ओपनिंग में ये कहा कि पाकिस्तान में एक मग़रबी एजेंडे के तहत ये तासुर है कि ये मूवमेंट्स चलती हैं और ये प्रोटेस्ट्स होती हैं। तो अगर मैं आपसे भी एक बराह रास्त सवाल, डायरेक्ट सवाल पूछूँ कि क्या आपके पास कोई सबूत है? क्या आपके पास ज़िंदगी में कोई एविडेंस ऐसी आई कि औरत मार्च से मुंसलिक ख़वातीन जो हैं, इनको गैर मुल्की एनजीओज़ फंड करती हैं या इनको गैर मुल्की एजेंसीज़ या बराह रास्त हुकूमतें फंड करती हैं? देखिए, मैंने तो एक सहाफ़ी के तौर पे काम किया है, तो मेरे पास तो ज़ाहिर है कई तरह के सबूत होंगे। और ये जो बात है कि जी उन सबूतों को सामने कैसे लाया जा सकता है या कैसे उस पे बात की जा सकती है, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये जो डॉक्टर साहिबा अभी बात कर रही थी कि जी मर्दों का बनाया हुआ मुआशरा है, ये भी मेरे ख़्याल में एक ऐसा नारा है जो उछाल दिया जाता है हवा में और फिर सारा एतराज़ एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ डाल दिया जाता है, ऐसा नहीं है। ये बराबरी के हकूक़ की बातें मसाइल थे। उन मसाइल की वजह से आवाज़ें इससे पहले भी उठती रही हैं, अब भी उठ रही हैं। जहाँ मसाइल हैं, उनके खिलाफ बात होनी चाहिए। लेकिन जहाँ मसाइल नहीं हैं या दूसरी तरफ से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनके बारे में भी बात होनी चाहिए। ये अभी डॉक्टर साहिबा ने कहा कि जी तनख्वाहों का मसला है कि एक जैसी तनख्वाहें नहीं मिलती। मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है, मैंने मीडिया में काम किया है, मैं अब सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है और बल्कि मैं अगर ये कह सकूँ कि हमारे यहाँ शायद औरतों को मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा हकूक हासिल हैं ओह! नौकरी के मामले में, तो शायद ये बात बिल्कुल ठीक होगी और इसलिए ठीक होगी कि इसी शहर लाहौर में आप कभी खुद जो है वो देख लीजिए तहकीक करके कि कितनी ख़वातीन की यूनिवर्सिटियाँ या ख़वातीन के कॉलेजेस हैं। कितनी ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पे मखलूत तालीम है। के बावजूद जो मर्दों के कॉलेज हैं, वहाँ पे ख़वातीन को भेजा जाता है और वहाँ पे जो है मर्दों को मसाइल का सामना करना पड़ता है, औरतों को तो वहाँ कोई मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। और ये जो हिरासानी वाला के इन्होंने हवाला दिया था, 2019 में मेरे दोस्त की जान गई थी, झूठे हिरासानी के केस में। तो मैंने आज तक नहीं देखा कि 2018 से आपने शुरू में हवाला दिया कि ये औरत मार्च चल रहा है, 2019 में मेरे दोस्त की जान गई थी। आज 5 बरस हो गए हैं इस बात को। कभी मैंने तो नहीं देखा कि बात हुई हो इस पे कि जी झूठे इल्ज़ामात भी लगते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ तौहीन मज़हब के झूठे इल्ज़ामात लग जाते हैं, वैसे हरासानी के झूठे इल्ज़ामात भी लगते हैं। तो क्या इन लोगों ने कभी इस पे बात की है कि जी इस हवाले से भी तो डिबेट होनी चाहिए या इस हवाले से भी तो पूरा मंज़रनामा सामने होना चाहिए कि बहुत से लोग, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं, वो अपने मफ़ादात मनफ़ी मफ़ादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करती हैं। या ये कहना कि जी गुर्बत के खिलाफ जो है वो अगर कोई काम कर रहा है, तो जी देखें ना वो तो गरीबों के हकूक के लिए काम कर रहे हैं। सब जानते हैं कि यहाँ पे जो ख़ास तौर पे औरत मार्च से वाबस्ता लोग हैं या जो एनजीओज़ हैं, वो गुर्बत के लिए कितना काम करते हैं। और आप जो है अब कल के दिन में खुद जाके देख लीजिएगा कि वहाँ जिस तबके के लोग आते हैं उनको गुर्बत को कितना करीब से देखने का मौका मिलता है। बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनके अपने घरों में मुलाज़मों पे तशद्दुद हो रहा होता है और जिस तरह से वो अपने घरों में मुलाज़मों को रखते हैं, वहाँ तो वो हकूक नहीं देते और बात होती है कि जी लोगों के बुनियादी हकूक जो है दबाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है पूरा मंज़रनामा अगर सामने रख के बात करनी है, तो फिर दूसरी तरफ की जो खराबियाँ हैं, उन्हें भी सामने लाया जाना चाहिए। डॉक्टर ज़िया, बिफोर यू रिस्पॉन्ड, एक ये तनकीद तो की जाती है ना कि औरत मार्च और वुमेन्स एक्टिविज़्म में पाकिस्तान में आपको ज़्यादातर अर्बन एजुकेटेड या वेस्टर्नाइज़्ड ख़वातीन नज़र आएँगी, यानी शहरों में बसने वाली मग़रबी तालीम याफ़्ता या एलीट क्लास की ख़वातीन, जिसका ज़िक्र अभी डॉक्टर साहब ने किया। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट क्रिटिसिज़्म? एक्चुअली मतलब उस क्रिटिसिज़्म पे भी मैं आती हूँ। मेरे ख़्याल में जिन लोगों ने मुझे अफ़सोस है कि सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हुए भी आप सबूत को एक तरफ़ कर देते हैं और कहते हैं सबूत की ज़रूरत नहीं। फिर तो आप बेतहाशा कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। पहली बात ये है कि 5 साल, 7 साल से औरत मार्च चल रही है। शायद ये इन्होंने कभी हैदराबाद की औरत मार्च नहीं अटेंड की है या बलूचिस्तान में जो मार्च हुई है या जो नॉर्दर्न एरियाज़ में मार्च हुई है, जहाँ होने की इजाज़त अगर दी गई है, तो उधर किस किस्म की औरतें मतलब और उससे पहले भी वुमेन्स एक्शन फोरम जो सिंध में काम करती आई है, गरीब औरतों के साथ,
देहात में औरतों जो काम करती हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करना, उनके हकूक सामने लेना, उनके माँगे कोई फ़र्क नहीं है। दूसरी बात ये है समीर कि ये जो कह रहे हैं ना सबूत कहीं नज़र नहीं आता है, सरकार के अपने सर्वेज़ जो हैं, उसके ऊपर ज़रा तवज्जो दें, सबूत सामने लेके आएँ जो कह रहे हैं इक्वल वेजेज़ नहीं होते हैं। ये सरकारी सर्वेज़ आपको खुद दिखाते हैं, आज़ाद-ओ-शुमार में भी आप देखें कि जी बराबर की वेजेज़ और तनख्वाहें नहीं देती। बिल्कुल गलत बात है कि औरतों के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं, एग्ज़ैक्ट ऑपोज़िट है, जो कि हर स्टडी आपको बताती है, चाहे वो यूनिसेफ हो या वो मकामी सतह पे सरकार की अपनी स्टडीज़ हों, वो दिखाता है लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती, आउट ऑफ स्कूल ज़्यादा च बच्चियाँ हैं, सिर्फ़ घरेलू काम की वजह से नहीं, बल्कि सेकेंडरी स्कूल्स हैं ही नहीं लड़कियों के लिए। तो ये बिल्कुल गलत बयानी है और गुमराह करना लोगों को कि ये कहना कि लड़कियाँ आके लड़कों की वो सीट्स ले लेती हैं, मतलब एक्चुअली फैक्चुअल बात करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस। ये गलत और ये कि गरीब औरतों के ख्वाजा सिरा का इश्यू एलीट्स का इश्यू नहीं है, ठीक है? घरेलू तशद्दुद जो है एलीट्स का इश्यू नहीं है। जायदाद से महरूम रखना सिर्फ़ शहरी इश्यू नहीं है, ये देहात का भी इश्यू है। रेपिस्ट और जो हरासा करने वाले हैं, वो जिस तरह से वो हर इदारे में और हर देहात में और हर शहर में मौजूद होते हैं। मुफ़्त मज़दूरी करवाने बिल्कुल सही बात है। वो एक तबका होता है, मर्दों की चलाई हुई फैक्ट्रीज़ और उनका जो एक रवैया होता है और तरीका होता है इदारों के अंदर डिनायल करना ऑफ फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी और औरतों का फ्री लेबर इस्तेमाल करना घर के अंदर भी और फैक्ट्रियों में भी, ये एक तो ये कहना कि सकाफ़त मर्दों की नहीं बनाई हुई, हर कानून, हर मईशत के मईशती असूल और पार्लियामेंट में भी हर इदारे में मर्द डोमिनेट करते हैं। तो ये एटलीस्ट ये मतलब ये तो अहमकाना बात होगी कि अगर हम इसको बुनियादी चीज़ों को या माने ही नहीं, देन वी कांट हैव अ डिबेट ऑन इट। और औरत मार्च से यही दिखाया जाता है कि जिनसी इस्तेहसाल और शिनाख्त से महरूम रखने ये देहाती इलाकों में बराबरी का जुर्म है। ये नहीं है कि सिर्फ़ शहरी जुर्म है। और ये इक्वल ऑफेंसेस होती हैं, ये हमने हर पूरी दुनिया की जो मी टू मूवमेंट्स हुई हैं, जो कि पाकिस्तान में भी हुआ है ये इसमें बिल्कुल साबित किया हुआ है। अब ये कहना एक आखिरी बात जिन्होंने इनका ज़िक्र किया कि जी जो गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, गलत इल्ज़ामात के हवाले से। अब देखें हुँ, ये ज़िम्मेदारी जो है ना, ये बहुत आसान है कहना कि आप लोगों की सारी ज़िम्मेदारी अब ये देखें पिछले 7 साल से आप अगर सोशल मीडिया पे भी गौर करें, कुछ होता है पाकिस्तान के अंदर, तो यही तंज़िया सवाल उठाना कि जी औरत मार्च ने क्यों नहीं अपना मौक़िफ़ दिया। एक तरफ कहते हैं इनको फंड्स नहीं लेने चाहिए, एक तरफ कहते हैं एनजीओज़ नहीं लेने, एक तरफ कहते हैं इनको एजेंडा नहीं होना चाहिए इनका। घरों में बैठी हुई औरतें 40 साल से बगैर दफ़्तर के, बगैर फंड्स के काम मुहिम चला रही हैं। लेकिन ऐसे मौकों पे कहते हैं कि इनके पास बेतहाशा सरमाया होना चाहिए जो कि हर चीज़ पे केस भी ये करें। आप अगर आपने वाक़ई आपको दिलचस्पी होती और आप इंटरेस्टेड हैं इस मौज़ू पे, आपको जो औरतों की तहरीक पाकिस्तान में रही है, फेमिनिज़्म की तहरीक, उसकी ज़रा केसेस तो फ़ॉलो करें कि हम किस तरह से केस उठाते हैं, अपने पैसे उसमें डाल के अदालतों में लेके जाते हैं, हमारे साथ रवैये क्या सामना पेश हैं। हमारी सक्सेस रेट 0 के करीब रहा है। बहुत कम केसेज़ हैं जहाँ हम जीतते हैं। सो एट लीस्ट गेट अ रियलिटी पर्सपेक्टिव कि आपकी उम्मीदें तो इतनी हैं कि जी गलत भई आप इतने हैं दिफ़ा करने के लिए मर्दों को, आपको हमारी ज़रूरत क्या है? हम अपना एक एजेंडा जो है कि औरतों को बराबरी दिलाने के उसमें लगे हुए हैं और बिल्कुल गलत इल्ज़ामात नहीं होने चाहिए। लेकिन जब ज़िना के तहत और ऑनर किलिंग्स के तहत और ये जो गैरत के नाम में जब कत्ल हो रहे होते हैं और वो हो रहे होते हैं, तो इन लोगों से आप क्यों नहीं ये सवाल पूछ रहे होते कि सारे मर्द कहाँ हैं? कभी आपने देखा है कि जी मर्दों की तहरीक निकली है क्योंकि औरतों के साथ इतनी ज़्यादती हुई जिसमें कोई औरतों की लीडरशिप नहीं हो, सिर्फ़ मर्दों की लीडरशिप है। सिवाय 1-2 लेफ्ट के जो हमारे कारकुन हैं अमार अली जान हो या आसिम हो वग़ैरह और कौन निकलता है? आप कहाँ होते हैं उस वक़्त जो आपको मतलब ये प्रिविलेज कैसे हुआ है कि आप सवाल उठाएँ कि जी किसी के साथ ज़्यादती हुई जो कि किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, इंसाफ़ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और उसके इसीलिए कानून बनाया गया सेक्सुअल हैरेसमेंट का। लेकिन उस सेक्सुअल हैरेसमेंट का आपने जाके तफ्तीश की है कि कितने केसेज़ में इंसाफ़ मिला है औरतों को? सिर्फ़ उस पे जी कि गलत जो इल्ज़ाम लगाया हो, वो एक केस के ऊपर जो बदकिस्मती से कि वो जो भी उसका नतीजा निकला है कि इज़ नॉट अ गुड शुगुन और गुड पर्सपेक्टिव फॉर एनीबॉडी, बिल्कुल गलत है। लेकिन ये हुँ। कि उसका ज़िम्मेदार कौन है, ये बड़ा आसान है कहना कि जी औरत मार्च के ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी डाल दी और उनको औरत मार्च होनी ही नहीं चाहिए इसलिए। व्हाट इज़ द आस्क ओवर हियर?
चलिए, we can agree to disagree. I'd like to move on because we are running short of time. डॉक्टर आतिफ खालिद भट्ट, आपसे मेरा ये सवाल है, and this is my last question to मैं you. डॉक्टर क्या समीर कुछ पाकिस्तान थोड़ी-सी में बात जी, मैं ज़रा मैं थोड़ी-सी सवाल बात अपना करना आपके सामने चाहूँगा। रख लूँ, आप उसमें अपने जवाब में शामिल कर मैं लीजिएगा कुछ अपना थोड़ी-सी रिप्लाई। बात मैं करना पहले चाहूँगा। सवाल आपके सामने रख देता हूँ। मेरा आपसे आखिरी सवाल आज की नशिस्त जी, में जी, ये प्लीज़। है, क्या जी, क्या प्लीज़, बिल्कुल। पाकिस्तान में मर्द बाइख्तियार ख़वातीन से खौफ़ज़दा हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसकी तरफ वैसे तफ़सील से बात बाद में करता हूँ। अभी डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि जी ये बात बिल्कुल गलत है कि औरतों के तालीमी इदारे ज़्यादा हैं और मर्दों के कम हैं। मेरे ख़्याल में इन्हें चाहिए कि ये ज़रा पंजाब के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से पता कर लें कि इस वक़्त पूरे पंजाब में कितने कॉलेजेस हैं, उनमें से कितने ख़वातीन के हैं और कितने मर्दों के हैं। तो इन्हें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा। इनके पास डेटा नहीं है, इन्होंने सिर्फ़ ये बात कह दी है। मैं उस महकमे से वाबस्ता हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा है कि ख़वातीन के कॉलेजेस कितने हैं और मर्दों के कितने हैं। तो ये कहना इन्हें कहें कि सिर्फ़ ये पता करें कि पिछले 4 साल में ख़वातीन के कितने नए कॉलेजेस बने हैं और मर्दों के कितने बने हैं, इन्हें खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरत-ए-हाल क्या है। अगली आपको बात अंदाज़ा ये है जो है कि जी डॉक्टर घरेलू साहब तशद्दुद डॉक्टर होता है, साहब, तो आपको मैं फिर यही कहना आप किस चाहूँगा कि डेटा में ये यकीन चीज़ों को करते हैं? देखते हैं बिट्स एंड पीसेस में। डॉक्टर साहब इस पूरी चीज़ों को दुनिया तोड़ में देते हैं और तोड़ If के if we फिर can if टुकड़ों if में we देख can के बात सुन पे if I could करते हैं। intervene, क्या डॉक्टर साहब तशद्दुद और डॉक्टर की साहिबा, हम एक पॉइंट को सारी ज़रा जो बेलेबर कर रहे हैं। तशद्दुद के हवाले से डॉक्टर तवज्जो साहब, है वो डॉक्टर जिस्मानी खालिद तशद्दुद पे होनी चाहिए। ज़हनी या डॉक्टर खालिद नफ्सियाती भट्ट, हम तशद्दुद जो होता शायद है या एक जज़्बाती पॉइंट को तशद्दुद जो ज़्यादा होता है उस पे बेलेबर बात नहीं कर होनी रहे चाहिए। हैं और और वक़्त की क्या भी हमारे घरों पास कुछ में कयूद जो है। तशद्दुद होता है हमारे पास वक़्त की भी कुछ कयूद है, हम एक पॉइंट को ज़्यादा बेलेबर ना करें। You've both given your points of view on this particular पॉइंट और आप डिसएग्री करते हैं और आप इसका पूरा हक रखते हैं। मेरी आपसे गुज़ारिश होगी कि अगर आप इस सवाल पर आ जाएँ क्योंकि हमारा वक़्त बहुत महदूद है। डॉक्टर आतिफ खालिद कि क्या पाकिस्तान में मर्द, जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं, हम बाइख्तियार पढ़ी-लिखी एक्टिविस्ट ख़वातीन या एक्टिव ख़वातीन से या जो हमें पब्लिक स्पेसेस में ख़वातीन नज़र आती हैं, क्या हम उनकी विज़िबिलिटी से, उनकी मोबिलिटी से खौफ एक्चुअली आई मीन उनका कनेक्शन टूट गई है समीर। अगर मैं सिर्फ ये बात 2 चीज़ें मैं सिर्फ कहना चाहूँगी कि एक तो ये नाज़रीन को इससे मिसलीड नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का जो मेयारी फ़हरिस्त में अगर देखें, औरतें सबसे कम पढ़ी-लिखी हैं इस मुल्क में। दुनिया की मेयारी फ़हरिस्त में अगर आप देखें सेकंड फ्रॉम द बॉटम है। और ये हुँ। दूसरा ये तो इट इज़ वेरी क्लियर, एक लाहौर का पंजाब सेंट्रिक डेटा दे के आप समझते हैं कि आप पॉइंट बना रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ख़तरनाक है। दूसरा ये कि जो आपने सवाल पूछा है ना कि अम, जो खौफ़ज़दा अगर लोग हैं, मर्द हैं ख़ास तौर पे बाइख्तियार औरत से, मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा खौफ़ का जो एक सबूत है, वो इस नारे से था कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। अब उसकी हुँ, माँग हुँ। बड़ी सिंपल है, ठीक है? और जिससे मुराद है कि सिनफ़ी तवक्कुआत पर जिनसी ताल्लुकात से इनकार या रज़ामंदी का मसावी हक़ होना चाहिए औरत को, वो ही एक इतना खौफ़ फैल गया है मर्दों के बीच में। तो मेरे ख़्याल में कोई पाकिस्तानी मर्द ये नहीं कह सकता कि वाक़ई वो खौफ़ज़दा नहीं है। अब वो कुछ भी बहाना बना लें कि माशरा ख़राब हो जाएगा, माशरा अभी अच्छा है। जो औरतों के साथ हो रहा है, जो बच्चों के साथ हो रहा है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, लड़कियाँ सबसे कम पढ़ी-लिखी हैं इस मुल्क में, पूरे खित्ते में भी और उसमें सिवाय अफ़गानिस्तान के, सेकंड फ्रॉम द बॉटम हैं हम। अब ये आप कह दें कि जी आलमी डेटा जो है ये बिल्कुल झूठ है, ये एजेंडा है, कंस्पिरेसी थियरी है। पाकिस्तान की औरतें इलिटरेट हैं, पाकिस्तान जितने भी स्कूल खोल दें, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ खोल दें, उस पे रोते चले जाएँ। लेकिन औरतें लेबर फ़ोर्स हमारी पार्टिसिपेशन सबसे कम है, वन ऑफ द लेस वन इन द फैक्ट स्टेम में नहीं है, औरतें हुँ, पढ़ी-लिखी हुँ। नहीं हैं, उनके मसावी हकूक़ नहीं हैं, लीगल हकूक़ नहीं है, मलकियत पे हकूक़ नहीं है। अब आप कुछ भी बहानेबाज़ी करते रहें, लेकिन खौफ़ज़दा हैं इन हक देने से। दैट इज़ द सिंपल ट्रुथ। डॉक्टर आतिफ खालिद, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी बिकॉज़ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो अगर हम एक ही सवाल को बेलेबर ना करें, उस पर ज़्यादा वक़्त ना लगाएँ। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान के मर्द, जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं, हम विज़िबल, मोबाइल और एम्पावर्ड ख़वातीन से खौफ़ज़दा हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं फिर यही कहूँगा कि एक एजेंडा है जिसके तहत इस बात को प्रमोट किया जाता है। और ये जो बात इन्होंने की है ना कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इतना आसान नारा है कि जी बस वो उसमें इतनी-सी बात है। ये इतनी-सी बात नहीं है। डॉक्टर साहिबा ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि इस नारे की बुनियाद क्या है और ये कहाँ क्या से है? निकल के आया क्या है। है आप बता दें और आज? इसमें बुनियादी तौर पे इस क्या फ़ाते है? हमल के हकूक़ जो है उन पे बात हुई थी।
मेरे ख्याल से चलिए आप बेहतर जानते हैं, आप बेहतर नहीं, जानते हैं मैंने तो कह हमसे, दिया है कि इस्काते हमल के हकूक जो है बुनियादी तौर पे तो उनकी बात थी ना। तो फिर उसमें प्रॉब्लम देखिए क्या है? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि जी बुनियादी तौर पे तो इस्काते हमल के हकूक के हवाले से बात है ना। तो प्रॉब्लम तो क्या है न इसमें? वो बताएँ। नहीं उसमें प्रॉब्लम है। देखें क्या? आप इसको फिर आप अपना देखती हैं हक मगरिबी खो ज़ाविये देंगे से, ना, मैं उसको आप देख रहा अपना हूँ हक मज़हब खो के देंगे। ज़ाविये से। प्रॉब्लम ये है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैं नहीं, नहीं, ये आपके मेरे हक की बात नहीं है, ये नज़रिए की बात है, ये तो दुनिया फिर को देखने के बराबरी कर ज़ाविये दें की ना। बात है, ये अकीदे की बात है। आप इसको देखती हैं मगरिबी ज़ाविये से। नहीं, इसमें क्यों? बराबरी आपकी अगर मेरी है ही नहीं। अगर अगर आप मग़रिब इसमें में देख रही मसावी हैं बात हकूक़ मिल को रहे हैं, अकीदे अगर को काट मग़रिब कर। में मसावी हकूक़ ये मिल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों So, नहीं Dr. बोरो Atif, कर सकते? if we can let him complete. जी, आई डॉक्टर नो आतिफ बट ही अभी हैज़ टू आप आंसर कहिए। अ क्वेश्चन, यू नो। नहीं, मगरिब में कहाँ मिल रहे हैं मुसावी हकूक? ये तो आपका एक नारा है ना कि मगरिब में मुसावी हकूक मिल रहे हैं। दे 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 देखें 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 देखें, ये जो बात है ना, अभी इन्होंने ये भी बात की कि जी घरों में भी जो है वो औरतों से ऐसी मज़दूरी ली जाती है जिसके लिए उन्हें अदायगी नहीं होती, फ्री लेबर की इन्होंने बात की। ये एक बिल्कुल अजीब-सी बात है, मैं फिर यही कहूँगा कि इन लोगों को बहुत शौक है कि एक बात को काट के पूरे मंज़रनामे से निकाल के बयान किया जाए। जिसको ये फ्री लेबर कह रही हैं, वो लेबर ऑफ लव है और सिर्फ़ वो औरतें नहीं, मर्द भी करते हैं। तो मैं क अपने क्या घर काम में एक करते हैं? प्लम्बर के तौर पे भी काम करता हूँ, इलेक्ट्रीशियन के तौर पे भी काम करता हूँ, ड्राइवर के तौर पे भी काम करता हूँ, माली के तौर पे भी काम करता हूँ। मैं घर का सौदा-सरफ लाने का काम भी करता हूँ, मुझे तो उसके लिए कोई अदायगी नहीं होती। और बाहर से मैं जहाँ से कमाता हूँ, उसका सारा जो कमाया हुआ पैसा है, वो घर पे सर्फ़ होता है। तो इनको इस ज़ाविये से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ये जो सरमायादारियत का दिया हुआ नज़रिया है, जिसके तहत हर चीज़ को जाँचने के लिए सिर्फ़ जो है, वो मिनट और घंटे गिने जाएँगे कि उसमें इतनी लेबर हुई है और उसका इतना मुआवज़ा मिलना चाहिए, ऐसे ही है। ये कोई मुनासिब नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं कि ये जो भी बातें करते हैं, वो मगरबी एजेंडे के तहत। डॉक्टर साहब, चलिए, चलिए इस पाकिस्तानी औरत मियार-ए-फ़हरिस्त इंटरनेशनल मियार-ए-फ़हरिस्त में बॉटम क्यों है? सबसे नीचे क्यों है? अच्छा चलिए या ये डॉक्टर भी आफिया मग़रिबी एजेंडा है? आई थिंक ये यू झूठ मेड है? योर पॉइंट। मैं आपसे अब आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा आज की नशिस्त में कि औरत मार्च में इस्तेमाल किए गए कुछ नारों और कुछ तस्वीर को इश्तियाल अंगेज़ कहा जाता है। हुँ। यानी कि अगर हम कहें दे आर ऑफ अ प्रोवोकेटिव नेचर और एंड दिस इज़ समटाइम्स काउंटर प्रोडक्टिव। तो क्या आप इससे इत्तेफ़ाक करेंगी? नहीं, मेरे ख़्याल में कि देखें एहतजाज जो होता है ना वो शाइस्तगी नहीं होती है। ये आतिफ़ साहब या दूसरों मर्दों का शायद ख़्वाहिश हो बिकॉज़ ये बहुत कन्वीनिएंट होता है कि एक ख़ामोश औरत, एक डोसाइल औरत जिसकी जैसे आप कह रही हैं खौफ़ज़दा हैं हम कि बाइख्तियार औरत जो कॉलेजेस में ज़्यादा जाती हों या ज़्यादा पढ़ लिख जाएँ वग़ैरह-वग़ैरह, ये परेशान करता है पाकिस्तानी मर्दों को। ये एक फ़ितरशाही निज़ाम की कामयाबी है कि मर्दों का इस्तिसाल बरकरार रखने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। औरत मार्च इस अमल के खिलाफ एहतजाज करती है। अब आपको पसंद हो ना पसंद हो, एहतजाज किसी को नहीं पसंद होता है। सब चाहते हैं कि खामोश एक बिल्कुल रैबिट्स, क्वाइट, डोसाइल कौम रहे, अथॉरिटेरियनिज़्म यही माँगती है, ठीक है? तो जब गुंजाइश ही नहीं है कि जिन्स और सिनफ़ी किरदार और ज़िम्मेदारी पर नॉर्मल इन्फॉर्म्ड डायलॉग हो सके, जब आप डिनाई कर देते हैं कि कोई मसला तो है ही नहीं, औरत कोई फ्री लेबर तो करती नहीं है, औरतें तो पढ़ती हैं, उनको इतनी रिस्पेक्ट है, इतनी इज़्ज़त लेकिन बॉटम ऑफ द पूरी दुनिया में हमारी वो फ़हरिस्त में हम हैं, हमारी प्रोग्रेस ज़ीरो है, हमारी डेवलपमेंट ज़ीरो है, लेकिन सब कुछ कह दो जी एजेंडा है, ये है, वो है, तो फिर ज़ाहिर है इस माहौल में समीर और किस तरह से इस बात पर मौज़ू पे बात की जाए। तो फिर तो आपको शॉक फैक्टर लेके आना पड़ता है ना, अटेंशन दिलानी पड़ती है, क्योंकि खामोशी से तो सिर्फ़ पिस रही है औरत। अब आप ये कह दें नहीं जी पाकिस्तानी औरत कोई नहीं पिस रही है, अफ़गान औरत कोई नहीं पिस रही है, बहुत खुश है। लिहाज़ा इस स्लोगन्स के ज़रिए एक्चुअली अगर देखा जाए कॉर्पोरेट सेक्टर में जिन्होंने काम किया, उनको पता है बहुत कामयाबी से मार्केटिंग ये सक्सेस रह चुका है ये स्लोगन। इट्स बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। मर्द तो परेशान होंगे जब आप हक माँगेंगे उनसे, तो और उनको किस चीज़ से इतनी परेशानी हो रही है? बैठ के डायलॉग कर लें, मगर जब तक आप डिनाई करते रहेंगे, डिस्क्रेडिट करते रहेंगे, अमेरिकन एजेंडा करते रहेंगे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मग़रिब में भी हक नहीं मिला है औरत को, लेकिन एट लीस्ट ये हक है कि वो इस पे बात कर सके और जद्दोजहद कर सके अपने हक के लिए। आप कहते हैं ये तो हक ही मुनासिब नहीं है, ये तो कोई भी हकूक भी नहीं है। इन्होंने तो साफ साबित किया है कि जो इस बुनियादी जिस्मानी अमल पर या हक पर
डिनाई करते हैं, वो तो हर चीज़ डिनाई करेंगे। वो तो कहेंगे कि आपकी पढ़ाई भी नहीं हो सकती है, आपकी मतलब वो काम भी नहीं कर सकती हैं, आपकी और फ़राइज़ हैं, आप इस किस्म के कपड़े पहने। यानी कि जब आपको एक प्रिविलेज होता है ना, आप उस प्रिविलेज को मिसयूज़ करते हैं। जब तक बराबरी नहीं आएगी मुकम्मल तौर पे और हर सेक्टर में, ये ही सिलसिला चलता रहेगा और पाकिस्तान बॉटम ऑफ द इंडिसेस, ग्लोबल इंडिसेस पे रहेगा। आपको परेशान नहीं करती, मुझे तो करती है, लिहाज़ा मेरा एहतजाज और जद्दोजहद बहुत सख्त होगी। वो उसके बगैर कामयाब नहीं हो सकती कोई एहतजाज। All right. On दिलचस्प that बात note, ये we है have to call it a day. मैं डॉक्टर समीर एक बहुत छोटी-सी बात करना चाहूँगा। एहतजाज के लिए ये जो एक मखसूस तबके के लोग हैं, इन्हें ही ये सारे हकूक नज़र आते हैं। इन्हीं में से ख्वाजा सरा बन के आ जाते हैं, जो मगरबी तंज़ीमों से ख्वाजा सराओं के नाम पे पैसे लेते हैं। असल ख्वाजा सरा आज भी बेचारे वहाँ सिग्नल पे भीख माँगते नज़र आ रहे होते हैं। और वो ये तो लोग औरतें जो भी है भीख माँगती हैं, मर्द भी भीख माँगते हैं, क्या हो गया? भीख तो तो सब फिर माँगते ये हैं। बॉटम लाइन की जो आप बात कर रही हैं, तो पूरा मुल्क ही बॉटम लाइन पे है, सिर्फ़ औरतें बिल्कुल तो है, बॉटम लाइन पे नहीं है। या तो माशरे चलिए, के बाकी तबकात बहुत सक्सेसफुल हमारा हैं। मुल्क अनफॉर्चुनेटली बॉटम पूरा लाइन पर मुल्क है, है। एट लीस्ट ऑन दैट वी कैन एग्री एंड हाँ, दैट्स वेयर वी हैव टू एंड दिस, दैट्स वेयर वी हैव टू लीव दिस। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने दोनों गेस्ट्स का, डॉक्टर आफिया ज़िया जिन्होंने हमें कनाडा से, टोरंटो से जॉइन किया, और डॉक्टर आतिफ खालिद भट्ट जिन्होंने हमें लाहौर से जॉइन किया। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया।